bowlers putting the batsmen of the opposite side under pressure will be in for a victory. And with 4 matches to be played in each group for every team, it's going to be interesting as you need to start off well. And also, even if you start well, then you need to be consistent enough to get victories under the belt. Maybe 3 or 4 is good enough to enter into the eliminations. So yes, here we are going to start the proceedings. Pradeep Patil and Sumit Dekli. Pradeep Patil is going to start an aggressive batsman. We have seen many a times when Pradeep strikes, he starts off aggressive mood in right of the first ball. And Sumit Dekli, what to say about this man? A wonderful, elegant left-handed player, and looks to take a good start in these power play overs, and also he can play the second fiddle, rotating the strike in the middle overs. A wonderful, wonderful player to have in your ranks. And in comes the bowler, Navneet Singh Thakur. I told you, and this is a catch taken. What a start by Navneet. Pradeep. So that was a very good catch taken in the short square leg. What a start. Wicket of the very first ball for AB Azam Warriors from Navneet. And that must have raised the spirits of this camp. गजब की ये शुरुआत है गेंदबाज के लिए, पहली गेंद और बड़ी सफलता। सलामी बल्लेबाजों ने कल के मैच में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। नीचे शिपिंग को खड़े खड़े स्वीप किया, एलिवेशन बिल्कुल भी नहीं था स्ट्रोक में, सीधे फील्डर की गोदी में इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर वहाँ पर ऑन साइड में खिलाड़ी रखा गया है सर्कल के अंदर। बहुत ही अच्छा कैच, इससे बढ़िया शुरुआत कोई भी गेंदबाज नहीं कर सकता है। पहली गेंद पर सफलता नवनीत सिंह के खाते में। I think all the sides should also be aware that they have to finish the matches in 40 minutes because the time slot is also important. They have to finish that quickly, go up to that bowling mark. And that's also discipline. As a bowler, as a fast bowler, you have to go to your mark fast and start bowling because thinking about too much is not going to happen. It's a wide signal. The first ball was a full toss, tried Pradeep Patil, sweep shot, didn't get the elevation. Pradeep Patil is an aggressive batsman, so very good here for the bowling side, AB Azam Warriors, that they can see his back off the very first ball. जी हाँ, हालांकि एक खतरनाक बल्लेबाज तो आउट हुए हैं, लेकिन दूसरे क्रीज पर मौजूद है सुमित देकले। निखिल ने ज्वाइन किया है उनको। खराब शॉट और आसान सा कैच वहां पर, एक और बढ़िया गेंद और विकेट का पतन। Well, if you see, you can have a look at this ball. The ball was in short, little bit bounce, but there was no foot movement from the batsman Nikhil. He, as a batsman, when you are trying to play across, especially the pull shot, your back leg should come across, and then you get that pivot to play on the square leg or mid-wicket region. Here, there was absolutely no movement of the body, no movement of the feet, and that's why it was difficult for him to play that pull shot. और ना सिर्फ यहाँ पर गेंद में जो उछाल था उससे बीट हुए हैं बैट्समैन, बल्कि जो गति थी उसको भी जज नहीं कर पाए। सही पोजीशन में नहीं थे वो पुल शॉट खेलने के लिए, बल्ले के ऊपर चढ़ गई थी गेंद और एक आसान सा कैच, लगातार दूसरा कैच फील्डर के लिए। हर्षिल बहुत अच्छा कार्य करते हुए
और गेंद भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा ट्रैवल हो रही है। पहले ही ओवर में 2 करारे झटके लगे हैं एचजे शिपिंग को। First catch was, you can say, slightly difficult. This was a easy catch. This was a sitter. The way he has cleanly taken the first catch, this was easy for him. You can see this bowling from the bowler, Navneet, is coming from over the wicket, left arm, quite tall. And when he bowls that good length area, the ball, this tennis ball gets little bit more bounce than the leather ball, makes difficult. And when the ball pitches outside the leg stump and then it goes away from the right hander, that time it becomes difficult. The pitching of the length and line from the left arm when you got the height is the crucial point. ज़्यादातर जैसे कि आपने पिछले मैच में भी जिक्र किया था कि लेफ्ट आर्मर्स को इस 10PL में देखा जा रहा है। Once again, that wild swing, a big swing he's trying, that extra bounce, once again helping the bowler. That's the reason why you need to have a tall bowlers. You can see that replay. The bounce is more than the batsman is anticipating, and that's why they are not middling the ball. 6 मुकाबले इससे पहले हो चुके हैं। इस सीज़न में ये 7वां मुकाबला है और देखिए अभी भी ऐसे लगता है कि जूस है पिच में। अच्छा बाउंस लगातार गेंदबाजों को मिलता आया है। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को सुमित ढेकले ने। जानते हैं कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि 2 बल्लेबाज उनके सामने ही पहले ही ओवर में आउट हो चुके हैं। इन फॉर्म है सुमित ढेकले और उस फॉर्म का अच्छा उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय उनकी टीम के लिए। And the bowler is also bowling in a good line. He knows that he has backed up 2 wickets, so he's continuing with that good line and length. Once again trying that short ball. And this is nothing short. What a bad start here by SJ Shipping. Every batsman that is coming is trying to go for the shots. कमाल की गेंदबाजी और बहुत अच्छा कैच भी फॉलो थ्रू में। थोड़ा सा उनको अपनी दिशा बदलनी पड़ी थी कैच को लपकने के लिए, लेकिन काफ़ी समय था, कैच ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और देखिए कंधे का जोर लगाते हुए, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि नथिंग शॉट है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संयम की परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा थी सुमित ढेकले के। 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। पिछली गेंद पर वो संयम दिखाया उन्होंने, रक्षात्मक तरीके से खेला था गेंद को। गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे सुमित ढेकले और तीसरे विकेट का पतन हुआ है बैकफुट पर मैच की शुरुआत में ही एचजे शिपिंग। Well, I think they are not reading Navneet well here. This man is tall, this man hitting the right areas, and once 2 of your partners are back in the pavilion, that shot was uncalled for. You should have waited, let Navneet's over go by, and let's see who are the other bowlers in AB Azam camp. They're not ready to play a waiting game. That's the problem with the tennis stars. They just want to go after the bowling. They just want to go for the boundaries and sixes. And that is where, in the first over, when you lose 3 wickets, you are already reeling back in this match. और यही तो खास बात है, 10PL जब आप खेलते हो तो एक अलग तरीके का आपका टेस्ट रहता है। 8-8, 10-10 ओवर के मैचेस आपको खेलने को मिलते हैं, और अन्य टूर्नामेंट्स में आप जब खेलते हो तो वहाँ पर ओवर्स काफ़ी कम रहते हैं। तो वो माइंडसेट जो होता है आपका, उसको चेंज करना पड़ता है आपको जब आप 10PL जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए आते हो। Normally, these players are used to playing 4, 5, 6 overs at the max. So 8 overs matches are very different. It's the first time in a league match anywhere in the world you can see 8 overs being played. And that's the reason some of the players, some of the batsmen are struggling to adjust. So wonderful. Another bowler starts off very well. Good line, good length. They must have talked in the camp that this is the line that we are going to bowl. This is a right arm medium pace bowler bowling from over the wicket. Pankaj Patil. लंबे ऊंचे कद की गेंदबाज है और इनको अतिरिक्त उछाल मिलना स्वाभाविक सी बात भी है। बॉलिंग एक्शन भी काफी बढ़िया। Oh, that could have almost been taken. That was outside edge. It was a good diving effort from the keeper, but it was away from him. So the bowlers are doing a fabulous job, excellent job at the moment, piling up the pressure on the batting side. SJ Shipping, 3 for 3. This scorecard, you don't see much in tennis ball cricket, and now the middle order has to rescue them. There is no other way.
Someone has to play a pivotal knock here. Just wait, play a waiting game, take those singles and doubles, and otherwise it's going to be difficult for this side to come back from this point. विश्वनाथ जाधव और भूषण पाटिल की जोड़ी अब क्रीज पर। This is top class bowling. This is top class bowling here. Whichever batsman is coming, whether it's a left-hander, whether it's a right-hander, the best part is they are adjusting themselves. They are adjusting to the right-handers, they are adjusting to the left-handers, and bowling the perfect length. For the left-hander, the ball is moving away with those off-cutters, and the right-hander, the ball goes straight on. This is played nicely. Uppercut here over the point region for 4 runs. Magnificent shot. मैच का पहला चौका। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ी जगह मिली थी और बाउंस को भी अच्छी तरह से काउंटर किया। नीचे रखने की कोशिश जानबूझकर नहीं की वहां पर भूषण पाटिल ने। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। बढ़िया टाइमिंग। And the ball also hitting the board of our strategic timeout partner Akash Jain. So that's will feel good here, feel good factor for the batsman after a long time. Once again, this time trying to glide the ball in the third man region. There is no man in the deep in the third man. He has kept a man at a deep point region and one man in square leg region. So they are bowling in the right channels. Sometimes, yes, odd ball, the batsman will do something different, trying to give himself room, trying to come down the track with a shimmy down the ground. But here, so far, the bowlers are concentrating perfectly well in the good length areas. Oh, this is nothing short. This is nothing short. This is going to be the 4th wicket. He was trying to play that uppercut shot and gives away his wicket to the short third man region fielder. चौथा झटका लगा है एच.ए. शिपिंग और उसमें से 3 बल्लेबाज उछाल लेती हुई गेंदों पर आउट हुए हैं। पहले बैट्समैन तो फुल टॉस पर कैच आउट हुए थे। शुरुआत खराब रही है और उसके बाद लगातार जो स्थिति है वो नाजुक होती चली जा रही है। जगह ज़रूर थी इस दफ़ा, लेकिन ऐसे लगा कि थोड़ा अधूरे मन से ही वो बल्ला चला बैठे थे। खेले ना खेले इस असमंजस में नजर आए विश्वनाथ जाधव। निराश किया है उन्होंने भी। चौथे विकेट का पतन और स्कोर केवल 8 रन। I was also surprised with that the kind of shot that he has played. The ball was away from the body, and most of the times when you are playing that uppercut, you should be coming closer to the ball to play those shots. When you are playing away from the body, it becomes difficult for you. You cannot slice the ball just like a forehand tennis batted shot. You need to scoop it up and play that over the point region. But I think the batsman was in no position. An extra bounce from the bowler helping the fielder to take an easy catch. कई बार तो आपको केवल गाइड करना पड़ता है गेंद को। इस तरह का उछाल होता है, जगह मिलती है, लेकिन उस हिसाब से बल्ला चलाया नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि अधूरे मन से ही वो स्ट्रोक खेला गया था, जिस वजह से अपने स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव। नाजुक अवस्था है। 8 पर 4 एच.ए. शिपिंग। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया है उनके कप्तान द्वारा। हालांकि कल भी उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए मुकाबला जीता था। अच्छा टोटल भी बनाया था। ओपनर्स ने खासतौर पर अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन आज शुरुआत खराब रही है। I think you should give credit to the bowlers. Nicely played in the backward of point region. Fielding is also pretty good, decent. They're coming down quickly onto the ball, not giving anything extra runs. The left hand here, so far, Bhushan Patil getting 6 runs off the 4 balls. And Saddam Khan is the new bowler coming to bowl from the far end. The same end where Navneet took 3 wickets. Once as a bowler you are taking 3 wickets in the first over, I think half the match you have got into your kitty as a captain or as a team management. They will be very happy with his performance at the start. जी हाँ, यहाँ से तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि विपक्षी टीम पलटवार करे।
जिस तरह से आपने मजबूत पकड़ शुरुआत में ही बना ली है मैच पर, 4 शुरुआती झटके देने में कामयाब रहे हैं आपके गेंदबाज पावर प्ले के दौरान। लेकिन शायद इस तरह से जब शुरुआत होती है तो बल्लेबाज भी ये सोच रहे होते हैं कि पावर प्ले कब खत्म हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी फील्ड फैल जाती है तो आपको मौके मिलते हैं सिंगल्स लेने के लिए। There was a full toss ball played nicely, but that is a man in the deep. It will be just a single run. And no ball signal here by umpire. I think it's a front foot overstepping out of the popping crease. Well, as an analyst, I've seen many a times in international, these no balls are costing even the international team. India has been costed because of this front foot overstepping by Arshdeep recently in many of the matches and consistently bowling those no balls. This is in the air, but it won't be out. And that's well inside. So just going to be 2 runs. कोई जोखिम नहीं था इस स्ट्रोक में, क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। सामने खेला, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला था प्रथमेश ठाकरे ने। नंबर 6 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है प्रथमेश ठाकरे। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, मैदान की चारों तरफ शॉट्स खेल सकते हैं। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च करते हुए गेंदबाज 1 फॉर द ओवर का इशारा भी अंपायर ने किया है। कुछ ज़्यादा ही पटका था इस बार गेंद को। When you see a grass turf, a green turf like this, where the tennis bowlers are not used to, they feel that yes, we have to scare the batsman by bowling the bouncers, and sometimes it goes above the head of the batsman. This was a lovely delivery. This was a beautiful delivery. It was never picked by the batsman from the hands. He was waiting for that space-up delivery, but what came off the hands was a slow one. So if you wait for a bullet train, here comes the local, slowly and steadily. Got to adjust. अच्छा मिश्रण करते हुए सदाम खान, और यहाँ पर मौका बना था। कोशिश बढ़िया की, विकेट कीपर ने ड्राइव लगाई थी अपनी दाहिनी तरफ, लेकिन कैच नहीं कर पाए इस गेंद को। विकेट लगाने का प्रयास, कितनी समझदारी हो सकती है, जबकि यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और निश्चित रूप से मौका था ये। That was difficult one, because once you are going for the switch, it becomes difficult for the keeper to judge where exactly the ball is heading. The keeper reaction comes a little bit late. Once again, lovely cover drive. There is a man in the deep which will fetch a single. But I think both these batsmen have understood this is not a time to keep up wickets. We are reeling back in this match. We need a partnership. We need to resurrect this innings. And doing slowly and steadily, Prathamesh Thakre and Bhushan Patil building up a partnership here after completion of 3, 17 for 4. SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman। दूसरा दिन है टूर्नामेंट का। हम हैं इस समय सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में, जहां पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। और टूर्नामेंट के बेवरेज पार्टनर है पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर अकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, स्मार्ट चेन डिजिबिट्स, हिटिंग पार्टनर UYP, अनलीश योर पोटेंशियल, broadcaster aggregator Made in India Pictures. And I was talking about bullet train, local trains. Who knows it better than a Mumbaikar? Coming from Bhiwandi, Ajay Gharat. And you need to adjust to the pace. You need to be quick to go into the local train and the bullet train, because some trains go fast, some train wait on the platform. Just the same way the batsman has to adjust for the variations of the bowler. You need to gauge it from the hand. If you play a waiting game, then sometimes it might be all over before even if you think of the next ball coming. हालांकि हमारे मुंबई की भाषा में कहा जाता है कि क्रिकेट की लाइफ लाइन सिंगल डबल है, और मुंबई की लाइफ लाइन तो लोकल है। यहाँ पर सिंगल डबल्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं पार्टनरशिप के लिए। I think good bowling. As far as the bowlers are concerned and the bowling team, the captain of the side should understand that we cannot loosen this grip. We cannot loosen this stranglehold on the batting. This is a very strong batting unit, and just because we have taken 4 wickets, we cannot consider that we are back in this match. We have seen a very good comebacks in tennis ball cricket, and if the score is somewhere goes around 60 plus, it won't be easy while chasing if wickets also fall during the start of run chase.
हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, जो की कॉल दी है। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक भी देखने को मिला प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। पार्टनरशिप बनाने का इंटेंट अब जरूर नजर आ रहा है इन दो बल्लेबाजों के बीच में। 9 पर बैटिंग करते हुए भूषण पाटिल, 6 पर खेल रहे प्रथमेश ठाकरे और स्कोर हुआ है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एचए शिपिंग काफी अच्छा खेली थी कल, लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी अलग है, खासतौर पर टीम अलग है सामने। Once again, trying to shuffle across. There is a wide gap, but you need to select the right ball. The bowling is pretty decent. They are bowling in the right areas. Whenever you are playing this kind of shot, either it is fetching you a boundary or a six, or it's a dot ball. This time, change of pace, bowling straight, played down the ground for a single. Well, in tennis ball cricket, I was talking about a total of 60-65 runs. One loose over, one bad over, and if the batsman goes for the sixes, some 15 or 20 runs in a single over can change the complexion of the match. There, the momentum drifts, the momentum shifts, and it can change in any course of the time. So the bowlers have to be absolutely sure they are bowling consistently in the perfect areas. जहाँ पासा पलटते वैसे भी ज़्यादा देर लगती नहीं है क्रिकेट के खेल में। उछाल लेती हुई गेंद, स्लैश करने का प्रयास था भूषण का, छूट गए पूरी तरह से उछाल में बीट होते हुए। अक्षय सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, चौथा ओवर है, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल। ये भी एक रणनीति है कि एक ही गेंदबाज को लगातार गेंदबाजी ना दी जाए, बॉलर्स को रोटेट करते रहे हैं कप्तान AB आजम वॉरियर्स की ओर से। So, oh, this is once again trying to play that uppercut. Once again, another batsman departs. This was almost half part of the first inning. That means 4 overs are completed and half the side is back in the pavilion. Half the side is back in pavilion after 4 overs are coming to an end. So that's not a good start here for SJ Shipping. The bowlers are picking wickets at the right time and in successive intervals. Whichever bowler is coming is picking wickets. Akshay Singh also picks up a wicket of his very first over. And at the halfway mark, it's not looking good for SJ Shipping. It's 21 for 5 in 4. And it's over for our duty and time, and it will be changed in the commentary box. हाँ, कमेंट्री बॉक्स में तो परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि इस समय जो वक्त है वो है आकर्षण स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 21 पर 5 SJA शिपिंग। टाइम आउट के बाद जब खेल की शुरुआत होगी तो आपके साथ रहेंगे हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स अभिषेक शानू और सिद्दिक भाभी। Yes, thank you, Ajay, and thank you, Harish. थैंक यू सो मच अजय एंड हरेश। एक बार फिर से आप सब लोगों का skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर आकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर SOCOS.io, स्मार्ट चेन, ये सब लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। साथ साथ किडिंग पार्टनर UYP अनलिश योर पोटेंशियल। तो एक नजर मैच पर चलते हैं अब यहां से। 4 ओवर के बाद स्कोर है 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। टॉस जीती, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उस फैसले को गलत साबित किया इनके गेंदबाजों ने। कमाल की गेंदबाजी यहां पर दोनों टीमों के द्वारा ये खूबसूरत सा मुकाबला चलता हुआ। यस, अभिषेक देखिए, टॉस जीत के बल्लेबाजी का जो फैसला था, कारण ये रहा कि सुमित डिगले जल्दी आउट हो गए। प्रदीप पाटिल कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ज़्यादा नहीं चल पाए। निखिल भी ज़्यादा देर नहीं चल पाए। विश्वनाथ यादव भी जल्दी में चले गए। भूषण पाटिल भी इस मरतबा विकेटों के ऊपर गेंद थी, गेंद को इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश की थी। प्रथमेश ठाकरे इस वक्त बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ निभाने मंदार
मंदार गुरु आए, लंबा कद है, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है इस मरतबा। बहुत खूबसूरत ड्राइव आउटफील्ड में डीप स्क्वायर लेग पर ऑफिस क्लोज खेलाता 1 रन। तो ये दो टीमों के बीच जो मुकाबला चल रहा है, बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला भी। एसजीएस शिपिंग वर्सेस एपी आजम वॉरियर्स की टीम यहां पर आपको नजर आ रही है। टॉस जीती, पहले बल्लेबाजी चुनी और दोनों टीम के ऑनर जो कि एसजीएस शिपिंग के मिस्टर महेश बोयर, थैंक यू सो मच। यस, लंबे कद के नवनीत सिंह ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं इस मरतबा। पुश करो और खुश रहो। या क्या बात कही आपने, पुश करिए और खुश रहिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे नवनीत के ऊपर जिम्मेवारी है गेंदबाजी की। काफी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, हम इनको हर जगह देखते हैं अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फिलहाल इस मुकाबले के अंदर छाए हुए हैं। नवनीत को फिर से बॉलिंग आक्रमण पर बुलाया गया है। स्लोअर गेंद का अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह से बल्लेबाज को दिखा करके, तो हसर आपका यही होगा जिस तरह से बल्लेबाज ने इस बार पढ़ लिया और जड़ दिया। क्या शॉट खेला है, आइए देखते हैं रिप्ले में। रिप्ले में देखते हैं, कमाल का शॉट खेला वहां पे प्रथमेश ठाकरे ने। ये देखिए, घुटना टेक और सिक्सर देख, स्लॉक स्वीप किया था और इतना बढ़िया टाइमिंग थी कि गेंद बल्ले से टकराई तो उस पर स्टैंप लगा हुआ था, मोहर लगी हुई थी 6 रन की। कमाल का शॉट। प्रथमेश ठाकरे बहुत ही गजब के ऑलराउंडर हैं और इस वक्त 1 मैन आर्मी का रोल अदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रथमेश को जिम्मेवारी सौंपी गई है एक अलग तरीके से टीम को लीड करने को लेके। बट यहाँ पे नवनीत सिंह जिन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी की है, उनके ऊपर इस तरह से शॉट लगाना ये इनके माइंडसेट को दर्शाता है। देखिए अभिषेक, एबी आजम वॉरियर अगर हम अभी तक देखते हैं तो गेंदबाजी का अच्छा खासा यूनिट नजर आ रहा है। बड़े बड़े बैट्समैन को उन्होंने चलता कर दिया। प्रदीप पाटिल, स्पेशली सुमित डिगले, भूषण। एक और आसमानी टोला, क्या गेंद मैदान के बाहर। यस, गगन चुंबी शॉट तारा मंडल में भेज दिया नवनीत सिंह को प्रथमेश ठाकरे ने। और प्रथमेश अब यहाँ पर अपने बल्लेबाजी से बता रहे हैं कि विकेट गया तो क्या हुआ, हम हैं जब तक डटे हुए तो फिर ये सारी चीजें, ये आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से वो शॉट सिलेक्शन कर रहे लगातार। यस सर, द मैन लुकिंग अ डिजास्टर मैन, लुक एट दैट। क्या शॉट खेला है, बल्ले का स्विंग देखिए, बल्ले के बीचों बीच गेंद ली थी और गेंद दूर गई गगन की छांव में। 6 रन। यहाँ पे इस खिलाड़ी का फुटवर्क भी नजर आ रहा है, इंटेंट नजर आ रहा है। एक बार फिर से डिपॉजिट किया बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 के लिए। क्या बात है, वाह भाई वाह। मेरे ख्याल से एनपीएल में क्या पहले बैट्समैन बने जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक किया है। वाकई में क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है प्रथमेश ठाकरे ने। 3 पे 3 सिक्सर, तीनों सिक्सर को आइए देखते हैं किस तरह से लगाया था। पहला उन्होंने स्लॉक स्वीप किया, दूसरा तारा मंडल में भेज दिया सिंह को और तीसरा पुल पावरफुल खींच के मारा और वंडरफुल। यहाँ से अब SJ का ये देखिए, ये क्या शॉट खेला है। क्रीज में पीछे जाकर इंतजार किया और वार किया। प्रथमेश ठाकरे ऑन फायर और रन देखते ही देखते बातों बातों में कुल 41। देखिए टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। अब एक अच्छा रनों का ओवर आया, कहाँ पे खड़ी थी SJ शिपिंग और कहाँ पे वापस ला दिया है प्रथमेश ठाकरे ने टीम को। और ये चीज भी खास रहेगी ना कि नवनीत सिंह ने कमाल की 3 विकेट हासिल किए थे अपने पहले ओवर में और दूसरे ओवर में उनको 20 रन पड़े। ये भी चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई बल्लेबाजों के माइंडसेट को। टप्पा इस बार सटीक जगह पे, टप्पा इस बार समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हुई। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी यहाँ से।
कमाल की गेंद कंधे के जोर से गेंद को उठाया था। शॉर्ट पिच गेंद थी और बिल्कुल कान के पास से निकल गई थी अक्षय सिंह की। सामना करे बैट्समैन मंदार ग्रो। प्रथमेश ठाकरे ऑन फायर, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 सिक्सर जड़ दिए थे। इस बीच यहाँ पे टप्पा को थोड़ा दूर रखने की कोशिश थी, बाहर गई गेंद। इस बार लगातार वहां से गेंद कांटा बदल रही है पड़कर, और इसी के साथ अब बढ़िया क्रिकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। आप हैं हमारे साथ इस रोचक मुकाबले के साथ, इस दृश्य के साथ, इस सुबह के साथ। ये गेंद अच्छी थी, आगे रखा, और यहां पर हल्की गेंदों का रखने का प्रयास गेंदबाजों के द्वारा अब शुरू हो गया है। देखिए 10 PL में बने रहे हमारे साथ। अगला मुकाबला होने जा रहा है इंटर ग्लोब मरीन बनाम AB यूपीज वॉरियर के बीच में। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, डोंट गो वे, कहीं भी मत जाइएगा 10 PL को छोड़कर। यहां पे इस बार खींच करके मारा, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, पड़ने के बाद शॉर्ट आर्म जैक करने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, और अच्छी यहां पे बैटिंग देखने को मिल रही है। देखिए अभिषेक, जब आप खींच करके मारते तो कम से कम गेंद की लाइन के पीछे या गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहिए। आपका हुक शॉट या पुल शॉट का यही मैनुअल है, और अगर आप कट शॉट खेलते हैं तो आपको जगह होना चाहिए। आप ड्राइव लगाते तो आंखों के नीचे बिल्कुल और गेंद के ऊपर लगाना चाहिए। ये क्रिकेट मैनुअल बताता है। बहरहाल शॉट में नहीं था दम, रन मिले कम। अब डिजास्टर मैन प्रथमेश ठाकरे सामने अक्षय। इसी बीच यहां पर ये स्ट्रोक बड़ा लजीज है, ये स्ट्रोक बड़ा खूबसूरत है, देकर जाएगी आधे दर्जन रन। 6 के लिए गेंद गई। This is a clever batting. This is a amazing batting. ये बल्लेबाजी वाकई में अद्भुत है। 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाने वाले 10 PL में पहले बैट्समैन बने प्रथमेश ठाकरे। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि नींद में सेट होकर आए हैं। जिस तरह से ये भी देखिए क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, पुल किया था गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। और देखिए 10 PL सीजन 4 में हमने अभी तक इस तरह की बल्लेबाजी देखी नहीं थी। इस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, उसके साथ आगे बढ़ना, वो प्रथमेश ने बताया है कि आप ये टेक्निकल टीम का कमाल देखिए। 4 सिक्सर दिखाए जा रहे हैं। दूसरा तारामंडल में, तीसरा खींच के मारा था स्क्वायर लेग का बाउंड्री के ऊपर, और चौथा इस गेंद पर अक्षय सिंह के लगाया हुआ। वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम आवर टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम भी हाईटेक कैमरे के साथ, और टेनिस क्रिकेट का ये इतिहास आरिफ खान पेट्रोमैन और 10 PL में बना है कि 22 कैमरों से पहली मर्तबा टेनिस टूर्नामेंट कवरेज दिया जा रहा है। इस बार अच्छा शॉट, इस बार बहुत बढ़िया शॉट। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते वहां पे बहुत अवसर था दोनों के पास चहलकदमी करने का। 1 रन पूरा होता हुआ, और इस 1 रन के साथ हाफ सेंचुरी टीम का पूरा होता हुआ, और शतक पूरा होता हुआ, 50 पूरा होता हुआ। अच्छी सोच थी अक्षय सिंह की। उन्होंने देखा कि छोटी गेंदों पर टूट पड़ रहे हैं प्रथमेश ठाकरे, उन्होंने थोड़ा सा गेंद को आगे रखा था। ये डगआउट यहाँ पे सुमित टिगले, आकाश तारेकर इस मरतबा ड्राइव किया है गेंद को आउटफील्ड में, 1 रन। बड़ा तेज आउटफील्ड नजर आ रहा है। जैसे ही आप देखेंगे गेंद जमीनी रास्ते से होती हुई जा रही है, बहुत तेजी के साथ फील्डर के पास पहुंच जा रही है। अगर शॉट में दम होता है तो क्षेत्ररक्षक के पास मौका नहीं होता है गेंद तक पहुंचने का, उसको आसानी से पकड़ने का। फिलहाल SkyExchange.net प्रेजेंट 10 PL सीजन 4 कारवां आज दूसरे दिन के सुबह तक जा पहुंची है, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। थैंक यू वेरी मच। 6 ओवर के बाद अब स्कोर है 51, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब मंत्रणाओं का दौर जारी है, यहाँ पे कुछ बातचीत चलती हुई। देखिए प्रथमेश ठाकरे जब तक रहेंगे, जब तक कहते हैं ना रनों की लटकती तलवार AB स्पोर्ट वॉरियर के ऊपर रहेंगी। आप देख रहे हैं इस वक्त 10 PL SkyExchange.net प्रेजेंट 10 PL टेनिस दुनिया का वर्ल्ड कप
powered by Petroman, beverage by partner Pepsi, strategic timeout official partner आकार चैन, साथ ही साथ सोकोस डॉट आईओ स्मार्ट चैन एंड डिजिबिट्स, साथ ही साथ किटिंग पार्टनर है UYP अनलेस योर पोटेंशियल, और ब्रॉडकास्ट एग्रीगेटर हैं मेड इन इंडिया पिक्चर। मेड इन इंडिया, और पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि 10PL का जो ये एडिशन है हमारे देश भारत इंडिया में खेला जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये 10PL अभी तक 2 कंट्रीज में खेला गया है। बिल्कुल, इस बार लगभग फुल टॉस लेंथ की गेंद यहाँ पर सीधे फील्डर के पास पहुंची। जब तक एक्स्ट्रा कवर की दिशा से दौड़ कर आते तब तक अवसर था, बहुत अवसर था विकेट पर चहलकदमी करने का। यहाँ पे इरादा कुछ और नजर आ रहा था कि गेंद को वाइड यॉर्कर रखा जाए, लेकिन वो फुल टॉस हो गई। थैंक यू। पेजिंग फॉर कैप्टन ऑफ इंटरग्लोब मरीन, पेजिंग फॉर कैप्टन ऑफ इंटरग्लोब मरीन। थैंक यू। Nicely played, picks on the full and firmly driven, all on the ground to a wideish long off. और इसी के साथ अब यहाँ पे फिर से खेल दिया। लगातार अब रनों की कोशिश हो रही है, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। 5 विकेट गंवाने के बाद टीम बैकफुट पर नहीं गई, ये खास बात रही है इस टीम की। जिस तरह से कमबैक किया है, टॉस जीतकर बैटिंग चुनने का फैसला को स्वीकारा है इन्होंने। फिर गति परिवर्तन सद्दाम खान की तरफ से, हालांकि स्विच हिट खेलना चाहते थे प्रथमेश ठाकरे। प्रथमेश बहुत अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार 4 छक्के इन्होंने जड़े हैं। इन्होंने बताया है, लगातार वो खुद से अब बात कर रहे हैं, खुद को परख रहे हैं कि अब कैसे टीम को आगे बढ़ाया जाए। उनके अंदर बहुत सारी चीजें अब चल रही है टीम को आगे ले जाने को लेकर। टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से जगह बनाते हैं और उसका बखूबी फायदा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। Yes, nice delivery from Saddam Khan, bang on target, but equally played by Prathamesh Thakre, turning with the corner to short fine leg. सद्दाम की गेंद, इस मर्तबा स्विच हिट की कोशिश। लगातार सद्दाम खान गेंदों में परिवर्तन कर रहे हैं, धीमा भी कर रहे हैं, गति परिवर्तन बहुत चतुराई से, और बीच बीच में तेज गेंद का भी मिश्रण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और SGA शिपिंग के ओनर मिस्टर महेश बोयर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। AB आजम वॉरियर्स के आजम भाई एंड जफर खान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच यहाँ पर एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि मौका बन रहा है, मौके को बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाया और बल्लेबाज को वापस लौटाया। व्हाट अ बॉल, काफी तीखा बाउंसर था, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद लीडिंग एज लेके चली गई थी। इतना तेज बाउंसर था कि पूरी तरह घूम भी नहीं पाए, हुक शॉट करना चाहते थे, सॉफ्ट डिसमिसल। काफी तीखी गेंदबाजी हो रही है सद्दाम खान की तरफ से। सद्दाम खान को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, यहाँ पे उनको लाने का मेन मकसद था कि प्रथमेश को किस तरह से नकेल कसा जाए, उनके बल्लेबाजी के ऊपर किस तरह से नकेल कसा जाए। सद्दाम को इसलिए बॉलिंग मार्च पर बुलाया गया था और उन्होंने बहुत हद तक काम करके दिया है। नवनीत सिंह, जिन्होंने पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च करके 3 विकेट लिए थे, और दूसरे ओवर में ही देखिए 20 रन जड़ दिए, और उस बल्लेबाज का नाम है प्रथमेश ठाकरे। काफी कमाल की बल्लेबाजी इनके द्वारा यहाँ पर। 7 ओवर के बाद स्कोर है 55, लॉस ऑफ 6 विकेट। देखिए, एक ओवर बचा है और प्रथमेश ठाकरे चाहेंगे कि मोर देन 10 रन आए, और SGA शिपिंग भी चाहेंगी। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, क्रिकेट में जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। गेंदबाजी में कंटिन्यू मेरे ख्याल से रखा गया है। हर्षिल को मोर्चे पे लगाया गया है।
देखिए डेथ ओवर की भी अलग कहानियां है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। हर्षिल और जब इस पहले इनिंग के दूसरे मैच के पहले इनिंग के आखिरी ओवर का खेल चलेगा तो हर्षिल के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये शॉट देखिए, घुटना टेका है, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयासों में, उस मंसूबे में कामयाब हुए नहीं और इस तरह से जाना पड़ेगा। हर्षिल को सफलता मिली। बड़ी विकेट, प्रथमेश ठाकरे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद डग आउट लौटते हुए स्लॉक किया था घुटना टेक कर, लेकिन हर्षिल पंडित की भी तारीफ करना होगी कि गेंदबाजी के वो भी पंडित है। बड़ी विकेट लेते हुए यहाँ पर, और प्रथमेश ठाकरे बढ़िया बल्लेबाजी के बाद उनका स्वागत डगआउट में तालियों से किया जा रहा है। व्हाट अमेजिंग इनिंग प्लेड बाय प्रथमेश ठाकरे। आमतौर पर बल्लेबाजों से अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस को देखेंगे इस ग्राउंड के ऊपर तो वाकई में शाबाशी तो बनती है। जिस तरह से बल्लेबाज कल हमने सुमित डेकले को भी देखा था, कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़े थे, टीम को आगे लेकर के चले थे। और ये जब ऐसे कंडीशन में जहां से आपके 5 विकेट जल्दी जल्दी वापस चले जाएं, उसके बाद टीम को आगे ले जाना कितनी बड़ी बात है सर। बिल्कुल, सुमित डिगले जल्दी आउट हुए, विश्वनाथ यादव जल्दी आउट हुए, प्रदीप पाटिल जल्दी आउट हुए। उसके बाद ये जो बारी थी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन 10 PL। मौसम सूरत में है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। स्वागत है आप सभी का सूरत की सरजमीन लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से। उस बीच यहाँ पे स्लोअर गेंद का इस्तेमाल गेंदबाज से लगभग ऑफ स्टंप के बाहर करने का प्रयास था। यहाँ पे विकेट पर बहुत तेज थे, बहुत चपल थे और दौड़ करके रन पूरा किया। कुल मिलाकर 2 रन और जोड़ा स्कोर कार्ड पर दोनों ही ने मिलके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 57, लॉस ऑफ 7 विकेट। बिल्कुल, धीरज सिंह भी हालांकि गेंदबाजी में उनका कोई सानी नहीं, लेकिन टेल बैटिंग है और उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा। पेजिंग फॉर कैप्टन ऑफ एबीज यूपी वॉरियर्स, पेजिंग फॉर कैप्टन ऑफ एबीज यूपी वॉरियर्स। थैंक यू। बॉडी लाइन गेंद थी, लेग बाय। देखिए रन कैसे आए वो ज़रूरी है, रन आना ज़रूरी है, रन कैसे आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ अभिषेक, कि आपको आपके पूरे पेमेंट से ज़रूरी है, चाहे वो गूगल पे से आए या फ़ोन पे से आए। क्या बात कही है आपने। पैसे का आना जरूरी है, अब वो जैसे भी आए, कैश में आप ले लीजिए या फिर फोन पे से ले लीजिए, पूरा आना चाहिए। ये पूरा उसूल करते हैं या नहीं इस गेंद पर? उछाल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ माय गॉड व्हाट अ कैच! क्या कैच पकड़ा है गिरते हुए। और यहां पे कैप्टन ने किस तरह से टीम को लीड किया। फील्डिंग में एबी आजम के द्वारा ये एफर्टलेस, जिस तरह से उन्होंने एफर्ट दिखाया, दाद देनी पड़ेगी। कोई सानी नहीं है इस फील्डिंग की, इन्होंने निशानी छोड़ी है इस 10 PL के अंदर। जिस तरह से फील्डिंग में एफर्ट दिखाया, वाह भाई वाह। ये माज इत्तेफाक कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, एबी आजम के कैप्टन है जिन्होंने इस कैच को लिया। हालांकि वही पोजीशन पे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एबी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स इस तरह के कैचेस लेते थे। या बिल्कुल उनकी याद दिलाई है उन्होंने, जिस तरह से खुद को पोजीशन करके। कैचिंग के लिए भी कई सारे तरीके होने चाहिए। जब आप देखते हैं उल्टा भागकर भी कैच लेना एक कला होती है फील्डर्स के अंदर, जैसा कि कल हमने देखा था कि कई सारे फील्डर्स से ऐसे प्रयास किए जा रहे थे। एबी खेल रही, लेकिन दुनिया दो ही एबी को जानती है, एक तो अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स और एक एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही। और तीसरा जो अब होगा ये खिलाड़ी होगा एबी आजम। इस मरतबा आउटफील्ड में खेला है, खिलाड़ी पहुंचे हैं, इस बीच 2 रन बने। देखिए
अभिषेक मेरा मानना है हमने थोड़ा तेज है जरा कि बची इस ओवर में कितनी गेंदें बची है, डेथ ओवर में एक गेंद, इस पे अगर बड़ा शॉट आता है तो एक ऐसा टोटल बनाया जा सकता है जहां पर AB आजम वॉरियर की परीक्षा ले सकती है, क्योंकि बॉलिंग को हम देखते हैं तो अच्छा गेंदबाजी का यूनिट मौजूद है, स्पेशली धीरज सिंह विकेट टेकर गेंदबाज है, लेकिन कहते हैं NPL जीतने के सपने से हर टीम आई है और कोई भी कमज़ोर नहीं, परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाए ये अलग बात है, क्योंकि ये 10PL है और ये दुनिया क्रिकेट टेनिस का वर्ल्ड कप है। Yeah, exactly. And लास्ट गेंद के साथ अब ये शॉट देखिए, कमाल का टाइमिंग, कमाल का एफर्ट, बैट के बीच ये साउंड बता गई कि 6 के लिए गई। इसी के साथ यहां पर ये पहला इनिंग का समापन हुआ। कुल मिलाकर रन बने 66, अब यहां पे 67 का टारगेट मिला है। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। ये जो आखिरी गेंद पर लविश ने कशिश बड़ा शॉट खेला है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है इस मैच का कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। और कुल मिलाकर रन बने यहाँ पर 67 का लक्ष्य रखा है AB आजम वॉरियर के सामने। क्या AB वॉरियर हारेंगे या नहीं, लेकिन चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए। टॉस बॉक्स में इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या मौजूद है। इट्स ओवर टू यू हरीश। ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. સુરત કેમ છો તમે? આપણા સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ ઉપર. ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ, આપ દેખ रहे हैं skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi. We are thankful to our strategic timeout and official partner Akar Chain. Thanks to our official partners, Smart Chain, DG Bits, and also Socos.io. We would also like to thank our kitting partner, UYP, Unleash Your Potential, and we are thankful to our broadcaster aggregator, Made in India Pictures. So we get ready for the toss of the next match between Mohammad Asif Abdul Salam Sheikh's AB's UP Warriors and Aman Maulvi's Interglobe Marine. I shall request both the captains to join me for the toss ceremony. Final call for AB's UP Warriors. So we are getting ready for the next toss as both the umpires making their way on the middle, Fayaz Sheikh and Nasir Sheikh. Sheikh and Sheikh on the ground. And both these Sheikhs have shaken the grounds so many times with their batting. As we welcome Kamran Khan, captain of AB's UP Warriors, owned by Mohammad Asif Abdul Salam Sheikh. And we welcome Aniket Raut, leading Aman Maulvi's Interglobe Marine, IGM. Welcome Aniket Raut and welcome Kamran Khan as we are getting ready for the toss ceremony, and I shall show you the toss coin. So we welcome our commentator friend Harish Kakodkar, who has traveled all the way from Goa and he's entertaining you with his beautiful voice in English. So this is the toss coin where 10PL is embossed on the one end and on the other end a Petroman.
is embossed on the silver coin. And let's see the call to be given, and the coin will fall which way. Petroman is the call, and Petroman it is. अनिकेत, आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन रहेगा? लोग पहले फील्डिंग करने वाले. Thank you so much. We have very less time. Get ready for your preparations. Interglobe Marine have won the toss and they'll be bowling first, and the team AB's UP Warriors will be batting first. Thank you. दोन्ही राईटी आहे एंड सांग. धन्यवाद. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. सूरत में खूबसूरत है सूरत, स्मार्ट सिटी है सूरत. मेरा सूरत, आपका सूरत, हमारा सूरत है खूबसूरत. और आइए अब रन चेस की दास्तां आपको सुनाने के लिए हम तैयार हैं. एबी आजम वॉरियर्स आलोट मध्य प्रदेश से पधारी हुई टीम है और उनके सामने एसजे शिपिंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है. और ये दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत है. हमारे दोनों अंपायर्स तैयार हैं और दूर वाले छोर से पहले ओवर को प्रारंभ करेंगे. धीरज सिंह, एबी आजम और अक्षय दो ओपनिंग बैटर. एबी आजम, इन्होंने क्या आज कैच लिया. कल हमने कामरान खान को कैच लेते हुए देखा था. क्या कलाबाजी, ऐसा लगा कामरान खान क्रिकेट छोड़कर जिम्नास्टिक्स बन जाते, जिम्नास्ट. तो वो भी क्या बढ़िया दृश्य था हमारे लिए. एबी आजम स्ट्राइक पर, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ. ये ऑफ साइड की फील्ड. और दूर वाले छोर से तैयार धीरज सिंह. धीरज की पहली गेंद धीमे से पुश किया विकेटों के सामने. सिली पॉइंट पर 1 रन. स्कोर 1. स्कोर 1. सड़सठ रनों का लक्ष्य है यहां पर एबी आजम वॉरियर्स के लिए. एबी आजम और अब यहां पर स्ट्राइक पर अक्षय. इस बार शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास था, खेलना चाहते थे. वहां पर मिड विकेट की और गेंद गई थी शॉर्ट मिड ऑन पर. दूर से दौड़कर आते हुए इन मोशन वो कैच को लेने का प्रयास था, लेकिन उस कैच को नहीं कर पाए किशन देवेंद्र. और यहां पर एक आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया गया. स्कोर 2. स्विच हिट लगाने का प्रयास. अब ये कितना लाजमी है अभिषेक के पावर प्ले के ओवर में चांस लिया गया या उन्होंने ऐसे ही खेल दिया? थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है आपके साथ कमेंट्री बॉक्स साझा करने का मौका मिला पहली बार. थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से. और उसके साथ साथ skyexchange.net presents 10PL पावर्ड बाय पेट्रोमैन, जो कि दूसरे इनिंग्स में हम सब पहुंचे हैं दूसरे मुकाबले के. और अब यहां से आपने बिल्कुल सही बात की कि लगातार चांस लिया जा रहा है बल्लेबाजों से. तरह तरह के अनोखे शॉट्स आजमाए जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शॉट है ये आकर्षक भले न हो, असरकारक होना लाजमी है, क्योंकि 67 रनों का उन्हें पीछा करना है. 48 गेंदों में स्कोर है 2. और स्ट्राइक पर एक बार फिर से एबी आजम.
इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला था, ये सुनिश्चित किया कि बॉल हवा में नहीं रहेगी और वहां स्क्वायर लेग के दाईं और गेंद को प्लेस करते हुए 1 रन वसूल करते हुए ए बी आजम स्वयं टीम के कप्तान है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। एक मशहूर ऑस्ट्रेलियन मुहावरा है कि कप्तान जो है टीम का श्रेष्ठ खिलाड़ी होना चाहिए और क्षेत्र रक्षण में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद ए बी आजम अब बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार। पारी का स्कोर 3। इस बार पुल कर दिया है, कैच आउट का मौका रहेगा और एक आसान सा कैच लपक लिया गया और आउट हो गया अक्षय। सर एक चीज और मैंने देखी एसजे सीफिंग टीम की तरफ से, जब वो बैटिंग कर रहे थे ना तो उनके जो 5 विकेट थे शुरुआती के वो 21 रन पर गिर गए। उसके बाद इन्होंने 66 वहां से उबर कर जिस तरह से बल्लेबाजी की वो बहुत खास रही थी पहले इनिंग्स के अंदर। तो अब क्या ये टीम शुरुआती दौर में विकेट नहीं खोना चाहेगी, इन मापदंडों पे खरे उतरने की कोशिश करेगी या फिर इनिंग को लगातार जनरेट करने की कोशिश करेगी? क्या होना चाहिए? देखिए पावर प्ले है, पावर प्ले एक लालच है और रनों की जरूरत और रनों का लालच, अंग्रेजी में इसको कहा गया है नीड फॉर रन्स एंड ग्रीड फॉर रन्स। जिसने इसके बीच के फर्क को समझ लिया, जैसे पैसों की जरूरत और पैसों का लालच, वैसे रनों की जरूरत रनों का लालच। यहाँ पर पावर प्ले एक ऐसा छलावना पावर प्ले जो है ना अभिषेक, ये क्रेडिट कार्ड की तरह है। पहले अच्छा लगता है, स्वाइप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन जब उस पे 5 ड्यू फीस ओवर ड्यू फीस लगती है तो उसके बाद समझ में आता है यार ये तो लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल वही स्थिति में इस वक्त ए बी आजम वॉरियर्स मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से अब यहाँ से इन चीजों को समझना होगा। लगातार आप फील्ड पोजीशन को एक नजर डालें तो उस एरियाज में भी फील्डर को तैनात कर रखा है जहां पे कि संभावित कैच जा सकते हैं। आप अचीव करने के लिए आगे निकल रहे हो तो ये इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइटिंग टोटल है, बट उसका बचाव अब गेंदबाज कैसे करेगी, उस पैमाने पर खड़े कैसे उतरेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले कुछ ओवर्स में। नवनीत सिंह ने पहले ओवर में 2 रन देके 3 विकेट लिए थे पिछले इनिंग में, लेकिन उसके बाद उनको 20 रन लगे दूसरे ही ओवर में। तो इसी तरीके से अब गेंदबाज इन चीजों को जरूर यहां से सीखेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर पहला ओवर आप अच्छा डाल रहे हो तो दूसरे ओवर में भी उसको कैसे रेगुलर कर सकते हो। इस बार खेला विकेटों के पीछे और 2 अंकों में प्रवेश करते हुए अब ए बी आजम वॉरियर्स 10 पर पहुंचे हैं। 1 विकेट का पतन हुआ है जहां पर हर्षद अक्षय ये आउट होकर वापस लौटे, लेकिन ए बी आजम का वो जो शॉट था वाकई में ये मध्य प्रदेश अलोट रतलाम के आसपास की टीम है और जिस तरह रतलाम की तीखी सेव चाय के साथ मजा देती है, वैसे ए बी आजम के उस शॉट ने नमकीन मजा दिया उस सिक्सर के जरिए। स्कोर है अब 10-57 की दरकार। दूसरा ओवर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से स्ट्राइक पर आते हुए अब लेफ्टी बैटर हर्षिल। ए बी आजम ने इससे पहले एक शानदार कैच भी लपका था, बहुत बढ़िया एफर्ट दिखाया था जब वो फील्ड पर थे। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, ये मौका नहीं दिया वहां पर गेंदबाज ने। जैद अच्छी तरह जानते हैं, कल भी जैद ने एसजे शिपिंग के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी और जैद इन्होंने वाकई में बल्लेबाजों को कैद करने का एक प्लान बनाया है, लेकिन ये अलग बात है कि वो ए बी आजम को कैद नहीं कर पाए और वहां पर मिसफील्ड के जरिए वो 6 आया। अगली गेंद इस बार नजाकत के साथ केवल कलाइयों का कलात्मक उपयोग किया, 1 रन को पूरा किया, तेज कदम भागते हुए दोनों बैटर्स और फोटो फिनिश वाला क्रिकेट था। बल्ले को ग्राउंड किया था वहां पर हर्षिल ने और ए बी आजम ने स्वयं अपने बल्ले को उठाकर अभिवादन किया। ये बहुत जरूरी है क्षेत्र रक्षण पर दबाव डालना और 1 को 2 में तब्दील करना। 1 डजन रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर 12 अब स्कोर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गेंदबाजों के लिए प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि 1 विकेट जरूर इन्होंने झटके है जल्दी जल्दी, लेकिन वो चाहेगी कि पावर प्ले में पहले बल्लेबाजों को रोका जाए, उनको थमने दिया जाए और उसके बाद फिर विकेट चटकाए जाएं। अब देखिए इस बार
इम्प्रोवाइज करने का प्रयत्न और अपने विकेट को दे दिया हर्षील ने, और दूसरा बड़ा विकेट। प्रथमेश ठाकरे, उनके लिए क्या मैच हो रहा है आज अभिषेक? क्या बात है, पहले उन्होंने जब बैटिंग करी तो वैसे गेंदबाजों के सामने हैट्रिक छक्के लगाए जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च करके 3 विकेट झटके थे, और दूसरे ओवर में उनको 20 रन जड़ दिए। तो आप समझ सकते हैं आज वो किस अंदाज में, किस लय में नजर आ रहे हैं। अलग ही विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है इनकी, और यही क्रिकेट है। मतलब एक दिन आपका होता है। कल विजय पावले ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कभी कभी आपका दिन होता है, ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसको चौका छक्का न लगे, और ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो आउट ना हो। तो ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य जहां पर एनपीएल के चेयरमैन आरिफ खान साहब को आप देख सकते हैं, हमारे तमाम इनवाइटेड गेस्ट और डिग्निटरीज के साथ में 67 का पीछा करते हुए AB आजम वॉरियर्स इस वक्त स्कोर हो चला है 12, 2 विकेटों के नुकसान पर 3 रन बनाकर आउट हुए। हर्षिल कैच लिया प्रथमेश ठाकरे ने, और नए बैटर अब अल्पेश। जायद की गेंद सीधा निकलती हुई, बिल्कुल सीधी सटीक गुड लेंथ बॉल। और अभिषेक आप जानते हैं गुड लेंथ बॉल एक ऐसी गेंद है जो आपको तय नहीं करने देती आगे जाकर खेलूं या पीछे जाकर खेलूं, और इसके पहले सोचते बॉल वो ऑफ कटर कटती हुई विकेट कीपर के हाथों में सेटल हुई। इसलिए क्रिकेट के जितने भी पुरोधा हैं, अक्सर ये गेंदबाज को जब कोचेज या फिर कहीं भी आप जाएंगे तो ये आपको बताते हुए नजर आते हैं कि आप जितना स्टंप टू स्टंप और गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा रखें वो आपको और बेहतर बनाता चला जाएगा। अगर आप गेंदबाज हैं, अगर आप उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज हमेशा से उनके क्रिकेट के जितने भी गुरु रहते हैं, क्रिकेट के जितने भी पंडित रहते हैं, वो हमेशा अपने शिष्य को ये चीज सिखाते हुए नजर आते हैं। तो अल्पेश मंडलोई 0 पर है और 9 पर खेल रहे हैं AB आजम, और ओवर समाप्त हुआ है, 2 रन बने हैं, 12 विकेट गिरी है 2। अब ओवर बचे हैं 6, यानी कि 36 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 55 रनों की दरकार। दूर वाले छोर से एक बार फिर से धीरज सिंह की आजमाइश की जा रही है। धीरज सिंह न केवल अच्छा कद है उनके पास, उनकी गेंदबाजी भी कदावर है, और जिस तरह से उन्होंने कल भी गेंदबाजी की थी हम सब उससे मुतासिर हुए थे, और मुसलसल अच्छा खेलते आ रहे हैं जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है। और अब गेंद के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाजी करेंगे कप्तान AB आजम। इस बार बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ पेस कराया, टप्पा बहुत अच्छा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में गेंदबाजों ने अपने टप्पा, अपनी गति और दिशा से हम सभी को प्रभावित किया है। और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर AB आजम की भी, जो हाइट जरूर छोटी है लेकिन इनका हौसला बहुत बड़ा है। जिस तरह से ये आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पहले फील्डिंग में देखा, बैटिंग में देखा, हमने 6 मारते हुए भी देखा। एक छोटी हाइट से इस तरह से खेलना बिल्कुल हमें उन पुराने दिनों की याद, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर अपने समय में किया करते थे। बिल्कुल, अगर आपका कद छोटा है तो आप उससे बिल्कुल भी परेशान न हो। क्रिकेट के खेल में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका कद छोटा रहा लेकिन उनकी शख्सियत का दावर रही, और AB आजम अपनी टीम के एक ऐसे तारीख साज खिलाड़ी है जो अब सामना करेंगे धीरज का। एक और बढ़िया गेंद, सीधी सटीक, कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में स्ट्रेटनिंग का टच कहा जाता है, उस तरह की गेंदें। और धीरज सिंह की जो गेंदबाजी है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है, वो अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर अचूकता से टप्पा रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े निर्भीक होकर गेंदबाजी करना, ये भी गेंदबाजों के अंदर एक कला होनी चाहिए। बल्लेबाजों को पढ़ना, उनको गढ़ना, ये चीज इन्होंने सीखा है बड़े बारीकी से। लगातार चौथी बिंदी गेंद और 4-0 स्कोर बुक में हमारे स्कोरर ने लिखे। 4 0 को अगर आकार चेन की तरह जोड़ दिया जाए तो
ऑडी का लोगो बन जाता है। बिल्कुल 0 0 0 0। AB आजम वॉरियर्स जो है और कप्तान स्वयं है, बट बॉस को कौन बोलेगा? बॉस इज ऑलवेज राइट और बॉस बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल, अब ये कुछ ना कुछ करने की जरूर सोचेंगे, माइंडसेट इनका जरूर चेंज नजर आएगा इस गेंद के ऊपर। अब उनका ये स्टांस भी बता रहा है। इस बार बराबर से ले नहीं पाए थे बल्ले पर, हालांकि प्लेसमेंट इस तरह रखी कि 1 रन हासिल किया और 12 से 13 आते आते काफी देर लग गई, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर अटकी हुई ट्रैफिक की गाड़ी की तरह। अब जाके उसे सिग्नल मिला और 12 से 13 पर पहुंचा स्कोर। विकेटें गिरी है 2, यानी कि अभी भी 54 रनों की दरकार है और ये तीसरा ओवर खेला जा रहा है। देखिए, उनको पता है कप्तान लीड कर रहे टीम को, एंकर रोल उनको प्ले करना है, तो वो इन चीजों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये टीम को आगे लीड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक बड़ा स्कोर है नहीं। इस बार भी परेशान किया धीरज सिंह ने, बड़ी निरंतरता के साथ अपना स्पेल पूरा किया है। 2 ओवर उन्होंने किए और 4 रन देकर 1 विकेट। 2 ओवर 4 रन 1 विकेट। पिछले मैच में निहाल तुसामत 2 ओवर 2 रन 2 विकेट। ये टूर्नामेंट गेंदबाजों के लिए जाना जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब 3 ओवर के बाद स्कोर है 13 और पिछले ओवर में देखें तो केवल 1 रन आया है, यानी कि अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है और ऊपर जाता हुआ अभी भी 54 रनों की दरकार है और उसके लिए ओवर बचे हैं 5। तो अब यहाँ पर ये जो 5 ओवर में इतने सारे रन्स करने हैं, अब कुछ ना कुछ यहाँ पे बातचीत चलती हुई, एक स्ट्रेटजी तैयार होती हुई कि टीम को कैसे अब लीड किया जाए। एक बड़ा स्कोर नहीं है, इतना ज्यादा भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी 66 तक पहुंचते पहुंचते 8 विकेटें अपनी गंवाई थी। इनके लिए तो ये चीज खास है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट गंवाई है। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम का सीजन चल रहा हो और आप अच्छा वाला आम जो है घर में लाए और बारिश का सीजन शुरू हो और वो आम आप पेटी से बाहर निकाले और तब तक उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। तो बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। लविश अब नए ओवर को प्रारंभ करेंगे। लविश के ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर लपेटना चाहते थे और एक आसान कैच छूट गया। AB आजम बच गए। बहुत ही आसान कैच। ये कैचेस बार बार नहीं मिलते, ये सुनहरा अवसर था। अंदर गुरव के हाथ में वो कैच आया था और क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे मौके तो गंवाना नहीं चाहते हैं। हमेशा कोई भी गेंदबाज जरूर नाखुश नजर आया इस प्रदर्शन से, बट वहां पे अब इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहेंगे फील्डर, क्योंकि ये आसान मौका था, इतना ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। आप खुद को आए, पोजीशन कर गए, उस कैचिंग लाइन में आ गए, उसके बाद मिस किया आपने। इस बार 1 रन लिया। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, लेकिन SJ शिपिंग की जिंदा दिली, खुददारी की तारीफ करना चाहूंगा। 4 विकेट उनके जल्दी गिर गए थे और जब 5वां विकेट गिरा तो ऐसा लगा कि मानो अभी ये टीम जो है बैठ जाएगी, लेकिन एक बार फिर से राख से उभरते हुए ये टीम को हमने देखा। SJ शिपिंग को आज क्या शिपिंग डे है, पहले ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग और अब SJ शिपिंग। आज शिपिंग डे रहेगा या नहीं ये चीज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में खेला गया था और इसके साथ ही बॉल छू मंतर होती हुई हमारे ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स के बैनर पर लगने वाला अफलातून चौका। देखिए, सोच को सलाम करना होगा। AB आजम जिस सोच के साथ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है अब्राहिम बेंजामिन उनकी तरह ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। पहले थोड़े देर विकेट पर रुकना है, टिकना है, और उसके बाद गेंदबाजों को उनके नाकामयाबी की दास्तान सुनानी है, किस तरह से उनके ऊपर रन्स बरसाए जाए ये बताना है। 15 पे पहुंचे AB आजम। बिल्कुल सही है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। अब जैसी सोच वैसी नजर और जैसी नजर वैसा नजरिया,
और यहाँ पर ए बी आजम, अब जो भी करना है मुझे करना है, सामना करेंगे लवीश का। इस बार स्विच इट करने का प्रयास, व्हाट अ कैच, मार्वेलस कैच। क्या कैच लिया अभिषेक निखिल नाइक ने विकेटों के पीछे। ऐसा लगा मैं क्रिकेट नहीं हम फुटबॉल देख रहे हैं। एक्शन रिप्ले देखने लायक होगा, जिस तरह से स्विच इट लगाया और फुल स्ट्रेच ऑफ द आर्म्स, हाथ में दस्ताने और कलाबाजी लगाता हुआ। निखिल के इस कैच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे अवार्ड देने को कहा जाए बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट सीजन 4 का, तो मैं बिना सोचे समझे इस खिलाड़ी का नाम ले लूंगा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं इस एफर्ट के अबाउट। जिसके कैच को पूरे इंडिया ने किया लाइक, वो है एसजे शिपिंग के विकेट कीपर निखिल नाइक। इस तरह अगर वो कैच करते रहे तो आजू बाजू से सड़क से गुजरने वाली थम जाएगी गाड़ियां और बाइक, क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहा है निखिल नाइक। और इसी के साथ अब यहाँ पे तीसरे विकेट का जब पतन हुआ तो अभी तक 20 के स्कोर पर भी नहीं पहुंची है। 1.5 दर्जन से सिर्फ और सिर्फ 1 रन आगे बढ़ी है और उसके साथ साथ अब 19 रन स्कोर है। 3 विकेट के नुकसान पर चीजों को समझना होगा अब भली भांति, क्योंकि अब एबी आजम तो जा चुके हैं वापस पवेलियन की तरफ। अब ये दोनों कैसे लीड करेंगे टीम को, ये बहुत दिलचस्प कहानी रहेगी, रोचक कहानी रहेगी। नए बल्लेबाज है उसामा, वो इस बार अपर कट लगाने का प्रयास, क्या पेस देखने को मिल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट का सुवर्ण युग आ चुका है। अब गेंदबाजों को ऐसे पिचेस अमूमन कई टूर्नामेंट्स में दस्तयाब कराए जा रहे हैं, जिसके ऊपर अब वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। देख ले, पहले इस तरह की पिचेस मैसर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हो रही है। विकेट पर लगातार ग्रास छोड़ा जाना और उस पर गेंदबाजों को गेंद डालते हुए देखना, यह निश्चित तौर पे आपको भी सुकून दे जाएगी। तो फिलहाल यहां पर ओवर नंबर 4 भी अब कंप्लीट। 4 overs 19 रन्स एंड 3 विकेट्स। देखिए किस तरह ये गेंद की गई थी और गेंद की लाइन से अपने आप को अलग नहीं कर पाए थे। तो 4 ओवर के बाद 19 रन बने हैं, यानी कि जीतने के लिए 48 रन और चाहिए बचे हुए 24 गेंदों में। और उसामा अशर और अल्पेश मंडलोई, ये 2 नए बैटर इस वक्त क्रीज पर है। और आइए चलते हैं आकार चेंज स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। ठीक 2.5 मिनट बाद आपके सामने अब मुखातिब होने जा रही है हमारे कमेंटेटर भाइयों की एक और जोड़ी। देखते रहिए। skyexchange.net presents 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। बॉस एक स्ट्रिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sweet. एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। और बाय पेट्रोमैन। कमाल का ये टूर्नामेंट आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हुआ है, लेकिन पारी को अभी तक जो आकार देना चाहिए था बल्लेबाजों को,
वो दे नहीं पाए हैं। 4 ओवर्स तक केवल 19 रन बना पाए हैं और बचे हुए 4 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए AB आजम वॉरियर्स को। उसामा और अल्पेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर, नेवर लेकर लवेश कौशल तैयार होते हुए, उनका यह दूसरा ओवर। थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, हालांकि एक तेज सिंगल लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। यहाँ से गियर्स तो चेंज करने ही होंगे बल्लेबाजों को। इसी तरह से आप 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैच को जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। हेलीकॉप्टर शॉट की तरह खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे उसामा। जैद गेंदबाज है, इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ओ हो जगल जगल जगल, लेकिन आखिरकार कैच लपक लिया और ये रहा चौथा विकेट। उसामा मैदान में तो आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसामा मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है आपका। औसम, शुक्रिया अजय। एक बहुत ही बड़ी विकेट मैं कहूँगा उसामा अशर की, क्योंकि जिस हिसाब के ये बल्लेबाज हैं किसी भी समय अपोनेंट से जो है ना खींच कर मैच को ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 4 के ब्रांड एम्बेसडर थॉमस दयास का, जो कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में टेनिस क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध। इस मैच की बात करें तो 4 विकेट अभी तक जा चुकी है अजय। यहाँ से इस पारी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा AB आजम के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। दिल्ली दूर जरूर है, लेकिन पहुंचा जा सकता है वहां तक। हाँ, उसके लिए कड़ी मशक्कत और मेहनत करने की ज़रूरत है। छेड़खानी करना चाहते थे, काफ़ी दूर थी ये गेंद, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर AB आजम वॉरियर्स को। टीम ओन बाय आजम अगवान एंड जाफर खान, उनके सामने HJ शिपिंग ओन बाय मिस्टर महेश भोईर। अच्छा खेल पेश किया है HJ शिपिंग ने। और इस बार इम्प्रोवाइजेशन गैप में निकालने में कामयाब रहे और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चतुराई भरा शॉट भांप लिया था, पहले ही मन बना लिया था ये शॉट खेलने का उन्होंने, और जैसे ही देखा कि थोड़ी सी दूर है गेंद तो उसको चीकी शॉट जो हम कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, उस हिसाब से बराबर गैप में ढकेला उसको और फाइन लेग की और चौका बटोरा। यहाँ से थोड़ा सा गेयर बदलने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज अली शाह। देखना होगा इस पारी को, इस मोमेंटम को आगे किस हिसाब से सजाने में कामयाब होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प। देखिए बाउंड्रीज थोड़ी कम ही आई है। पिछले ओवर में भी एक चौका हालांकि लगा था, लेकिन उसके बाद आप जैसे कह रहे हो कि गियर चेंज कर दिए बल्लेबाज ने, वहां पर भी तब ये लगा था, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने जो वापसी की वो गजब की। अंतिम 3 गेंदे पिछले ओवर की विकेट और उसके बाद 2 डॉट गेंदे। मोमेंटम जारी रखना बहुत जरूरी है। इस बार स्विच इट करना चाहते थे, लेकिन चूक गए पूरी तरह से। तो इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि बाउंड्री आने के बाद आप क्या कर रहे हो। क्या आप स्ट्राइक को घुमा रहे हो या फिर एक और बाउंड्री आप अर्जित कर सकते हो, जिसकी की ज़रूरत भी कहीं ना कहीं रहेगी। लेकिन अभी भी काफ़ी समय है इस मैच में। ये 5वां ओवर चल रहा है। ज़रूर लक्ष्य थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 20 गेंदों में 42 की आवश्यकता। ओहो, बढ़िया पेस परिवर्तन, गजब की गेंदबाजी। एक रचनात्मक शॉट देखने को मिला फाइन लेग की दिशा में, चौका। उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर लगातार बीट करते हुए पेस में अच्छा परिवर्तन किया गया था इस दफा। बिल्कुल अजय, मैं आपकी राय से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आप जब चौका बटोरते हैं तो आपको चाहिए कि वहां पर स्ट्राइक रोटेट करें, जिसके चलते आप दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं गेंदबाज पर, और एक मौका भी मिलता है नॉन स्ट्राइकर को जो काफी देर से सेट है वहां पर। अब की बार तो मौका भी था, लेकिन उसको भी नहीं भुना पाए।
यानी कि आपने एक चौका तो जड़ा, लेकिन उसके बाद 3 डॉट गेंदें खेलकर उस चौके का मजा पूरी तरह से किरकिरा कर दिया। कमजोर गेंद थी ये फुल टॉस, लेकिन जब रिवर्स स्ट्रोक आप खेलने का प्रयास करते हो तो समय उतना कहाँ पर होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पेस में बीट हुए हैं बल्लेबाज, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ जैद का 5 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ है। रन संख्या 25, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 42 रनों की जरूरत है बचे हुए 3 ओवर्स में। SkyExchange.net presents 10 प्रीमियर लीग सीजन 4 चौथा एडिशन पावर्ड बाय पेट्रोमैन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का। यूं ही नहीं, इतना बड़ा टूर्नामेंट को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है अजय, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे स्पॉन्सर्स ने यहाँ पर हमारा साथ दिया है, अपनी एडी चोटी का जोर लगाया है, पूरा सपोर्ट, पूरा एफर्ट दिखाया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SkyExchange.net का। साथ ही साथ बेवरेज जो पार्टनर है हमारे पेप्सी, ये आमतौर पर हमें इंटरनेशनल मैचेस में जो कि चलते हैं वर्ल्ड कप वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज इस स्थिति पर, इस ऊंचाई पर आ पहुंची है टेनिस क्रिकेट। मैं धन्यवाद करूंगा पावर्ड बाय पेट्रोमैन का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नेवर लेकर लवेश उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन ज्यादा कटी ऑफ स्टंप के बाहर, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। अतिरिक्त रन, एक रन बेशकीमती है। बल्लेबाजों को यहाँ पर आक्रमण करने की जरूर आवश्यकता है। यहाँ तो मैं बात कर रहा था पेट्रोमैन की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जहां पर पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स भी आपको स्पॉन्सरिंग के लिए आगे आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आकर्षण का, जो कि हमारे ऑफिशियल पार्टनर भी है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के स्पॉन्सर भी हैं। और आगे चलते हुए Socos.io, स्मार्ट चेन, DG बिट्स किडिंग पार्टनर, UYP अनलीश योर पोटेंशियल, और वेन्यू पार्टनर जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SDCA लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत का। और इस बार ऐसे लगा कि बिल्कुल भी आंखें हट गई थी उनकी। गेंद को खेलने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप में फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा वहाँ पर ऑन साइड में। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये थोड़ी कछुए की चाल लग रही है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कहीं ना कहीं। हालांकि कछुआ वो ठीक है, कहानी में रेस जीत गया था, लेकिन यहाँ पर वैसा होगा ऐसे लगता नहीं है यदि इसी चाल से चलते रहे तो। यहाँ पिछले मुकाबले में भी इसी कहानी को हमने देखा था, जिस हिसाब से वलसाड स्ट्राइकर्स ने पारी को खेला था। इसी के चलते एक और झटका लगता हुआ बाहरी किनारा, इस बार बड़ा झटका। अल्पेश को जाना होगा वापस, बाहरी किनारा छेड़खानी करने का प्रयास था पॉइंट के ऊपर से। विकेट ऐसे खेल रहा है इस NPL में जैसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन अर्थात वाका का पर्थ का विकेट देखते हैं, जहां पर काफ़ी उछाल मिलता है तेज गेंदबाजों को। और यहाँ पर भी वही चीज़, ये उछाल जो है ये तंग कर रहा है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को। और यहाँ पर कई सारे बल्लेबाजों की जो तकनीक है वह एक्सपोज हो रही है। बैकफुट पर आपका गेम कितना स्ट्रांग है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट में। 28 पर 5 इस समय AB आजम वॉरियर्स 67 रनों का पीछा करते हुए। जी हाँ अजय, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर समझने में इस चीज़ को दुविधा हो रही है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी बढ़िया स्कोर बना था वहाँ पर, और इस मैच में भी वही हाल रहा। लेकिन सेकेंड इनिंग्स के चलते इस बार छोटी गेंद काफ़ी ऊंची रही, जिसके चलते वाइड अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होगा वहाँ पर ज़रूर। जी हाँ अजय, मैं बात कर रहा था कि सेकेंड इनिंग्स में मतलब क्या वहाँ पर विकेट का कुछ हद तक परिवर्तन योगदान समझ सकते हैं, या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी की टीम की कि थोड़ा सा रुक कर खेलेंगे तो कि आगे चल के लक्ष्य को पार करने में आसानी होगी, जो कि पलटवार बैकफायर कर रही है उन पर। मुझे नहीं लगता है कि बल्लेबाजों की ये रणनीति है कि धीमा खेलकर बाद में कवर अप किया जाए, यहाँ से तो बहुत मुश्किल है। उनको मौके नहीं मिले हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छे स्तर की रही है इस पारी में। इस बार हालांकि स्लॉट में और उसको भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क।
लाजवाब छक्का। जी नहीं, इस हिसाब की गेंद यदि आप तनवीर को देंगे तो वो प्लॉट करेंगे ग्राउंड के बाहर। ये बहुत ही बड़ा छक्का था इस मैच का, अद्भुत, अविश्वसनीय। तनवीर अपनी वीरता दिखाते हुए यहाँ पर इस पारी को संभालते हुए, जान फूंकते हुए इस मैच में। 14 गेंदे 32 रन चाहिए इस बार। फिर से एक करारा प्रहार करना चाहते थे, शॉट हम फुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार बाउंस थोड़ा सा कम रहा। अपेक्षाकृत ऊपर उठी नहीं गेंद, जो कि बहुत ही कम रहा है इस टूर्नामेंट में। ऐसा माना जाता है कि जो टर्फ विकेट होते हैं उसमें ज़रूर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ जाता है वो विकेट थोड़ा सा स्लो होता चला जाता है। कई विकेटों पर हम देखते हैं कि बाउंस भी धीरे धीरे कम होता जाता है। शायद हो भी सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी तक तो विकेट ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है। इस बार गेंद को जाने दिया क्योंकि यह दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 14 गेंदों में अब 31 रनों की दरकार है। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं अजय। यहाँ से केवल 12 रन प्रति ओवर की दरकार है और यहाँ से आप सिंगल्स अगर डबल्स बनाते हैं तब भी आप इस लक्ष्य के करीब पहुँच सकते हैं। उसके बीच यदि आप 1-2 बाउंड्रीज अगर लगाने में कामयाब हो तो आपका अपर हैंड रहेगा, आपके लिए बड़ा एडवांटेज रहेगा इस चेज में। 13 में 31 चाहिए बल्कि। खूबसूरत गेंद इस बार। इस तरह के एंगल के विरुद्ध खेलना बहुत मुश्किल है। टप्पा पड़ने के बाद लहराती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास और इसके साथ ही लविश कौशल का स्पेल पूरा होता हुआ। 2 ओवर्स में 17 रन देकर 2 विकेट्स। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने अपनी टीम के लिए। 6 ओवर्स की समाप्ति, रन संख्या है 36 पर 5 और बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 31 रन इस मैच को जीतने के लिए AB आजम वॉरियर्स को। तनवीर एक छक्का जरूर लगाया था इन्होंने, कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा वहां पर, लेकिन उसके बाद डॉट बॉल्स हमने तनवीर की ओर से भी देखी। देखिए अजय, जब आप छक्का लगाते हैं, चौका लगाते हैं तो वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा और आगे वाले बल्लेबाज को जो नॉन स्ट्राइकर पर रहेंगे उनको भी एक मौका बनेगा कि वहां पर रन स्कोर करें, क्योंकि दबाव में नजर आते हैं गेंदबाज अमूमन जब बाउंड्री लगती है। तो छोटी छोटी गलतियां अगर गेंदबाजी में होती हैं तो बल्लेबाज को चाहिए कि एडवांटेज ले उसका और स्कोर बनाए वहां पर। जी हाँ, यहाँ पर तो ज़्यादा गलतियाँ हुई है। दूसरे ओवर में भी हमने देखा पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद की 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए, अपने 1 विकेट भी गंवा दिया। उसके बाद जो चौथा ओवर था उसमें तीसरी गेंद पर चौका, उसके बाद कुछ भी रन्स नहीं। और पिछला ओवर भी जो देखा हमने 5वां ओवर खासतौर पर, उसमें भी एक बाउंड्री आई, फिर 3 डॉट गेंदे और अब छक्का लगने के बाद 2 डॉट गेंदे, यानी कि परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है इस पारी में। विकेटें भी नियमित अंतराल पर गिरती रही है, जिस वजह से अभी भी काम मुश्किल नज़र आ रहा है AB आजम वॉरियर्स के लिए। लेकिन खेल क्रिकेट का है, ये बड़ा ही महान और विशाल खेल है, निराला खेल है, रोमांचक खेल देखने को मिलता है क्रिकेट का। 12 गेंदों में 31 रन। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, स्लॉग स्वीप की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन जरूर किया है वहां पर कप्तान सुमित ने, गेंदबाजी के लिए कमान संभाली है वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने। बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी भी इन्होंने की थी, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार हवाई फायर, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। क्या ही कहने इस खिलाड़ी के, कमाल धमाल बेमिसाल। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और ज़्यादा ऊपर उठी भी नहीं, कंफर्टेबल हाइट पर आई थी बल्लेबाज के लिए। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ लिया था, बैकफुट पर जाकर पुल किया, थोड़ा ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर निकल गए थे। ये देखिए हल्की सी शॉट थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कंफर्टेबल हाइट पर आई थी, खींच के मारा, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, शानदार छक्का। और अब फिर से वो चर्चा जारी रहेगी मेरे ख्याल से कि क्या होगा सिक्सर आने के बाद, क्या स्ट्राइक रोटेट होगी या फिर एक और बड़ा शॉट देखने को मिलेगा या फिर डॉट बॉल।
ओ गेंद हवा में है, ओहो पूरी तरह से कैरी नहीं हुई, मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है, बहुत बड़ा गैप वहां पर डीप कवर पॉइंट पर, बढ़िया एफर्ट डीप में, लेकिन तब तक 2 रन पूरे, 9 गेंदों का खेल बाकी है और अब 23 रनों की आवश्यकता। रोचकता बरकरार है खेल में, बल्कि रोचकता अब लगातार बढ़ती जा रही है इस मैच में। अजय, आप अगर नजर डालेंगे इस ग्राउंड की गैप्स पर तो इतनी बड़ी गैप्स हैं कि आप अगर गैप में शॉट खेलते हैं तो आपको आसानी के साथ 2 की जगह 3 भी बनाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। इस बार एक बार फिर से हवा में गेंद, नीचे आएंगे फील्डर, क्या कैच हो सकता है, क्या मैच, जी हाँ, अपने पल्ले में एक और कदम करीब कर लिया है यहाँ पर इस कैच के साथ। मिस हिट था ये पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे, शायद पहली मर्तबा गेंद इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है इस टूर्नामेंट में, इस सीज़न में, और बहुत अच्छा कैच। धीरज की तारीफ करनी होगी, धीरज जितने अच्छे बॉलर है उतने ही अच्छे फील्डर भी है। कल भी हमने देखा था उनको फील्डिंग में बहुत अच्छा कार्य करते हुए, ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के लिए धीरज। गेंदबाजी भी उनकी कमाल की रही, 2 ओवर्स में 4 रन देकर एक सफलता, और जो पहले 6 ओवर्स में 3 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। 44 पर गिरा है ये 6ठा विकेट, और एच शिपिंग की स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अली शाह आउट हुए हैं और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर बढ़ते हुए, 8 गेंदों में चाहिए 23 रन। सद्दाम नंबर 8 पर पहुंचते हुए खेलने के लिए। बहुत सही कहा आपने अजय, धीरज ने अपनी नजरों को जमाए रखा, चीते की रफ्तार, बाज की नजर और धीरज की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, और उसी तरह अपनी नजरों को जमाए रखा। जितनी ऊपर थी गेंद, ये आसान नहीं होता किसी भी फील्डर के लिए जज करना वहां पर, लेकिन जिस हिसाब से जज किया और कैच को लिया, बहुत ही तारीफ के काबिल वहाँ एफर्ट नजर आया फील्डिंग का धीरज द्वारा। 8 गेंदे 23 रन, गेंदों और रनों के बीच में 15 का फासला है औसम। 2-3 बड़े शॉट्स, निश्चित रूप से बल्लेबाजों के पक्ष में समीकरण आ सकता है, लेकिन प्रथमेश लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस बार आउट कटर छकाया पूरी तरह से नए बैट्समैन को। बल्लेबाजी में भी इन्होंने काफी आतिशबाजियां यहाँ पर दिखाई थी। 36 रन जड़े थे 17 गेंदों में, 6 छक्के उसमें शामिल थे, लेकिन इस बार 4 छक्के, माफ कीजिएगा, उसमें शामिल थे। इस बार जो गेंदबाजी के साथ हुनर दिखा रहे हैं, काबिल तारीफ प्रथमेश। गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन प्रथमेश का। दूर से खेला है, गेंद हवा में, ओ फ्लाई स्लिप में बढ़िया एफर्ट, लेकिन कैच नहीं लपक पाए फील्डर। थोड़ा सा आगे उनको दौड़ना था, गेंद हाथों में गिर गई थी। गेंद जब हाथों में गिर जाती है तो इस तरह के मेगा इवेंट्स आप जब खेलते हो तो इस तरह के कैचेस तो लपकने होंगे आपको। कैच ड्रॉप हुआ है, एक और विकेट मिलते मिलते रह गए यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे को, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर है 44, 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है इस मुकाबले में, और अंतिम ओवर में 23 रनों की जरूरत। देखिए अजय, आपको कैलकुलेटिव इनिंग्स खेलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 48 गेंदों में 67 रन आपको बनाने हैं। अगर आप लास्ट ओवर में पहुंचते हैं तो 6 गेंदें 23 रन, तो मतलब आपने उतना अपना होमवर्क किया नहीं है। सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी पर आने से पहले आपको चाहिए कि आप एक टारगेट सेट करके आए पावर प्ले में कि 2 ओवर में इतने रन बनाएंगे। ये यदि एक आध विकेट गिर भी जाता है, लेकिन आपकी स्थिति मजबूत होती है पावर प्ले में, तो वहां से आसानी के साथ आप सिंगल्स डबल्स के साथ भी गेम को चुरा सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी कम देखने को मिली, सिंगल डबल्स वाला जो गेम था वो बहुत कम देखने को मिला है। बड़े शॉट्स तो फिर भी आते रहे हैं बीच बीच में, लेकिन आप डॉट गेंदे देखोगे ना औसम, तो 16 डॉट गेंदे, मैं विकेट्स भी नहीं पकड़ रहा हूँ उसमें, 16 डॉट गेंदे बल्लेबाजों ने खेली, ऑलमोस्ट 3 ओवर्स, यानी कि वो 16 गेंदों में आप 12-13 रन भी बनाते तो इस आखिरी ओवर में अच्छा मौका आपके पास रहता मैच को जीतने का। लेकिन अब 6 गेंदों में 23 रन, कितने भी अच्छे बल्लेबाज क्यों ना हो क्रीज पर, कभी भी आसान नहीं होता है। विश्वनाथ गेंदबाजी के लिए हवाई फायर किया है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर जज करते हुए, ओह बेहतरीन एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट। खुद मैदान के बाहर चले गए, लेकिन उससे पहले हवा में उछलकर गेंद को मैदान के अंदर रोका। इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस। बिल्कुल, जी हाँ, जिस हिसाब से रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी नजरों को जमाए रखा था गेंद पर, और प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। जान लिया था कि बाउंड्री लाइन वहां पर करीब है, और उसके साथ चतुराई दिखाई, नजरों को जमाए रखा, और बहुत ही बढ़िया एफर्ट के साथ
उन 6 रन को बचाया वहां पर प्रथमेश ने। 100% कमिटमेंट, संपूर्ण समर्पण यहाँ पर देखने को मिलता हुआ प्रथमेश द्वारा, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। रन नहीं लिया गया था पिछली गेंद पर, क्योंकि ये करना था बैट्समैन को। तनवीर ने हवाई फायर किया और इस बार सक्सेसफुल, 6 रन। मौका नहीं दिया। मैच को जीवित रखते हुए तनवीर, 4 गेंदों में अब 17 रन चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर की स्लाइटली फुलर लेंथ गेंद थी, ज्यादा कुछ फुटवर्क तो नहीं था इस स्ट्रोक में, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब, ऑन साइड में उड़ाया, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। यहाँ पिछली गेंद पर वहां पर थोड़ा सा मौका जरूर था छक्का रोकने का, रोका भी प्रथमेश ने, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं दिया। वहां पर रडार में गेंद थी और ऐसा जबरदस्त ताबड़तोड़ शॉट लगाया कि सीधे स्टैंड पर जा गिरी गेंद। 2 क्लोजिंग फील्डर्स है इस बार, टॉप एज, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम। बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ AB आजम वॉरियर्स को तनवीर पेवेलियन की राह पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर पूरी तरीके से मैच को अपने कब्जे में कर लिया है SJA शिपिंग्स ने। जिस हिसाब की गेंदबाजी रही है, जिस हिसाब की फील्डिंग रही है, काबिल तारीफ। आप किसी भी जगह पर एक मिस्टेक, वहां पर एक गलती नहीं निकाल सकते। यहाँ पर चाहे गेंदबाजी रही हो, चाहे फील्डिंग रही हो, बहुत ही बढ़िया, जैसे कि आपने कहा 100% कमिटमेंट, 100% एफर्ट इन्होंने लगाया है। काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं SJA शिपिंग में। अच्छी कोशिश रही इस मैच में तनवीर द्वारा, और यदि मैं गलत नहीं हूँ औसम, तो तनवीर का मतलब होता है रोशनी, और जीत की रोशनी दिखाई थी उन्होंने अपनी टीम को, लेकिन उनके पारी पर अब पर्दा गिर गया है और 3 गेंदों में 17 रन चाहिए। बहुत मुश्किल काम, 3 बड़े हिट्स की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए AB आजम वॉरियर्स को। उनके सामने SJA शिपिंग, 2 क्लोजिंग फील्डर्स, वो भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली दबाव बनाता है बल्लेबाज के ऊपर। सिली पॉइंट और सिली कवर पॉइंट। इस बार सिंह ने बल्ला घुमाया जरूर, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और अब ये मुकाबला पूरी तरह से झुकता हुआ SJA शिपिंग के पक्ष में। लगातार दूसरी जीत की तरफ अग्रसर ये टीम। AB आजम की उम्मीदों का सूरज डूबता हुआ, जब मौका था उस लौ को जलाए रखने का, तब थोड़ा सा वहां पर पीछे रह गए AB आजम के बल्लेबाज, लेकिन अब इतनी दूर है कि मानो वहां जीत की कगार, जीत की खुशबू भी उनसे काफी दूर, मैं कहूंगा। नीचे फील्डर है डीप फाइन लेग की दिशा में, कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज। यहां से अब केवल एक गेंद बची है, और देखिए यहाँ नेट रन रेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाद में। हर ग्रुप में 5 टीमें हैं, ये ग्रुप A का मैच है, और 2 टीमें हर ग्रुप में से टॉप की क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए। इस बार स्विंग किया है, लेकिन गैप में नहीं खेल पाया, डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, और इसके साथ ही मुकाबला तो समाप्त हो रहा है, लेकिन कितने रन्स मिलेंगे ये देखने वाली बात है। 2 रन्स, तो थोड़ा सा जो नेट रन रेट है उसको बेहतर करने की कोशिश की बल्लेबाजों ने। मुकाबला जीत लिया है SJA शिपिंग ने, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए। बिल्कुल, यहाँ से थोड़ी सी सीख जरूर मिलेगी AB आजम को, किस हद तक अपनी बल्लेबाजी के क्रम को संभालें, किस हद तक अपने बल्लेबाजी के क्रम में परिवर्तन करें, क्योंकि जिस हिसाब से गेंदबाजी रही है पूरे बॉलिंग यूनिट की। ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पर 66 पर 8 SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। हालांकि स्थिति खराब थी शुरुआत में, लेकिन